Namaste. Yet another conversation with a very, very interesting personality. He's an entrepreneur who's thought ahead of his time, and somewhere perhaps timed it right because we are all in this now AI generation. So, a lot of us who've seen multiple generations of technology evolve are now looking at yet another step over the next 1 or 2 decades, how life is going to change for all of us. So, Ankush Sabharwal, founder Bharat GPT and co-rover, correct? Yeah. Good to have you here. First up, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you for making all the effort to fly in from Bengaluru into Delhi. No, thank you, Anand. It's the big thing sitting with you. I know Thank you for it's a having big me. thing for us to sit with you. But tell me, how did Bharat GPT happen? I'm very curious because, let's start there. How did Bharat GPT happen? Yeah, so see, as you said, thanks for this nice introduction. We started probably ahead of time, and I think that's true, right? When we started in 2016, we had to convince people the AI works, and and it helps in many aspects of the businesses, in many aspects of human life, and we were struggling convincing people. But somehow we started, and we saw the first breakthrough in around 2018 when we went live with Indian Railways, IRCTC, Astish, and after that, many other organizations went live with, and a lot of users used it. And we had a lot of data, as we know, AI ke liye we need a lot of data. The key ingredient for making AI platform is the data. So we had that with the virtue of we catering to billion plus users now, and that was a natural progression for us to create LLM. And in fact, if you ask me to send a corporate deck, so whatever deck I'm going to send you, it's the same deck which we had created 6 years ago. And it's like, the whole world is conspiring to really take us on the same line of the path which we have set for ourselves. Set for yourself. Yeah. तो ऐसा हो रहा है. But एक simple टर्न, जैसे कि बिल्कुल मैं एकदम ऐसा है कि काला अक्षर भैंस बराबर when it comes to AI. तो आप मुझे ये बताइए कि IRCTC में what did Bharat GPT do? So where do I see Bharat GPT's work when I open the IRCTC website? Yeah. So first of all, let me state very clearly: there is Bharat GPT is not there in IRCTC Astisha yet. See, we are say live with 100 plus organizations, and around 60 of them are using Bharat GPT. Correct. But let's see the AI part of it. हाँ. So where is AI Correct. used in IRCTC? Or any of the platforms where Bharat Where GPT is. Bharat GPT is used, right? So now if you see NPCI, so NPCI has Pi. Pi is personal assistant for digital Correct. payment literacy. So if people have any questions, people ask, मेरा पिन गुम हो गया, मैं क्या करूं? अच्छा, रुपे कार्ड और UPI में क्या डिफरेंस है? रुपे कार्ड को UPI के साथ कैसे लिंक करूं? So a lot of questions which people would have to use these digital payments. So लोग क्वेश्चन पूछते हैं in the language of their choice, and बोल के पूछ सकते हैं, लिख के पूछ सकते हैं, जैसे हम हाँ, अभी तो वॉइस में करो या फिर टाइप करो. हाँ. आजकल सब ये वॉइस ही चल रहा है सब जगह. बिकॉज दैट्स नेचुरल, दैट वुड हैपन. अभी कम हो रहा है, हम लोग वॉइस कम करते हैं बिकॉज हमें लगता है कि वॉइस नहीं चलता. हमको टाइप की आदत है, क्योंकि जब हमने वॉइस यूज किया था तब नहीं चला और हमें लगता अभी भी नहीं चलता, लेकिन अब चलता है. तो या कमिंग बैक, तो अब अगर कुछ भी कोई क्वेश्चन पूछता है, सो नाउ वी हैव 3 सेट्स ऑफ गिविंग द स्टैंडर्ड आंसर्स. द फर्स्ट इज, हमें पता है कि लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं. लोग पूछते हैं सपोज मेरा अकाउंट बैलेंस क्या है, या मेरा PNR स्टेटस क्या है, या रिफंड स्टेटस क्या है. हमें पता है कि 80% लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं. सो देयर वी डोंट नीड जेन AI. वहाँ पे फिक्स्ड आंसर है कि ये तुम्हारा अकाउंट बैलेंस है, ये तुम्हारा PNR. तो वो जो चैट बॉट आपका जो होता है, हाँ, वो AI पावर्ड होता है. वो AI पावर्ड होता है. तो उसमें कुछ पार्ट नॉर्मल AI है, कैजुअल AI बोल लो. कुछ पार्ट अराउंड 20% भारत GPT है. अब भारत GPT में है कि ये है कि हमें नहीं पता यूजर क्या पूछेगा. वो बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं. राइट. सो वी हैड नॉट एंटिसिपेटेड दिस क्वेश्चन. ठीक है. तो उसमें जो हमारे पास कंटेंट होगा, जो हमारे क्लाइंट देगा, जो भी चाहे PDFs हैं, वेबसाइट्स हैं, जो भी हमारा कंटेंट होगा, उसमें से हम आंसर जनरेट करते हैं. वी डोंट गो टू इंटरनेट, एंड नो चांस ऑफ हॉल्यूसिनेशन.
we generate the answer based on the content given by the client, और रेफरेंस भी देते हैं कि ये आपका क्वेश्चन था और ये आंसर है और यहाँ से हमने आंसर बनाया. सो दिस पार्ट इज भारत GPT पावर. So that's the generative part. जहाँ That's the पर generative part. जो out of context response question होगा, यानी out of syllabus question आ गया, तो उसको within the syllabus रह के कैसे आंसर जनरेट करें. आई थिंक यू आर्टिकुलेटेड राइट. सो विद इन द सिलेबस रह के, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आंसर देंगे. वो तो hallucination वाला part वो हो नहीं. गया. Hallucination. Absolutely. Where do you see 5 years down the line, 10 years down the line, where do you see jobs Yeah. happening? Yeah. See, we have to create jobs. A lot of people are becoming creators today. That's only one aspect. A lot of people are moving towards tech. Yeah. Now in tech, they're saying, I want to work in AI, I want to work in this field. तो अब एक tier 1, tier 2 सिटी में या tier 3, tier 4 cities में जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई मुझे कुछ करना है बड़ा, आपको कहाँ लग रहा है जॉब्स कहाँ से आएंगी? और दूसरी बात, प्लीज ऑल्सो एक्सप्लेन कि हाउ डज आवर एजुकेशन सिस्टम नीड टू इवॉल्व, व्हाट काइंड ऑफ कोर्सेज डू वी नीड टू ब्रिंग इन so that we are ready to generate a workforce that can augment or complement the demands for the future. No, thanks for asking this. मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा लंबा आंसर. हाँ प्लीज देखो, पहले मैं और आप ही बात कर रहे हैं, है ना, तो ठीक है. हाँ जी. तो पहले क्या होता था, कंप्यूटर यूज करने के लिए कंप्यूटर कोर्सेज होते थे. जी. यू एग्री? हाँ, है ना. करेक्ट. मुझे याद है जब मैंने पहला कंप्यूटर देखा था. हाँ, वो ऑन स्टार्ट बटन दबाने से लेकर के सब बताते थे, फ्लॉपी डिस्क कैसे अंदर डालें. हाँ, बड़ी बड़ी फ्लॉपी होती थी. यूज करने के लिए हमें कंप्यूटर कोर्स करना पड़ता था. अभी मैं ये नहीं बोलूँगा कि सब लोग यूज कर लेते, बट फेयरली काफ़ी लोग यूज कर सकते हैं बिना कोर्स के. है ना. अब तो नहीं है ना, कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को बनाया गया था, आई रिमेंबर. करेक्ट. अब तो सब पढ़े लिखे हैं, दे नो हाउ टू यूज. पैदा ही होते हैं टेक के साथ, उनको पता है. बिल्कुल. तो लेकिन अभी क्या हो रहा है, प्रोग्राम बनाने के लिए कंप्यूटर कोर्स करना पड़ता है, या चाहे इंजीनियरिंग कर लो, चाहे आप कुछ स्पेशल प्रोग्रामिंग कोर्स कर लो. वो अपस्किल, या तो अपस्किल करो या तो फिर उसी में स्किल अपना ग्रेजुएट करो. बिना सीखे आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते. करेक्ट. है ना. करेक्ट. मुझे जो लगता है बाद में क्या होगा, सब लोग कंप्यूटर यूज करेंगे जो आप मेजॉरिटी करते हैं, और कुछ लोग 50% प्लस जो वर्किंग पॉपुलेशन है, दे वुड बी एबल टू क्रिएट AI एप्लीकेशंस विदाउट डूइंग प्रोग्राम्स. और जो AI की बात हो रही है ना, मुझे लगता है नेक्स्ट 12 से 18 महीने तक होगी बस. हाँ. फिर अभी कंप्यूटर की बात होती है. सो नाउ AI विल बी पार्ट ऑफ एवरी सेक्टर. और जॉब्स कहाँ होगी? मुझे नहीं लगता टेक में होंगी. अगर टेक में होंगी तो वी हैव नॉट क्रिएटेड द राइट टेक. ओके. We are just talking about tech, not creating the right tech. The tech should create the solution on its own. है ना. ऑटोनमस की बात हो रही है, गाड़ी अगर अपने आप चल रही है तो AI एप्लीकेशन क्यों नहीं बन सकती अपने आप. सो आई थिंक जॉब शुड बी क्रिएटेड इन अवर सेक्टर्स, राइट. मे बी मीडिया, मे बी हेल्थ केयर. खाना तो बनाना, किसी को फार्मिंग तो करनी है, किसी को कुक तो करना है, राइट. So I think the job should be in the natural, the fields, right? Maybe the healthcare, education, the travel, of course, it's required, and maybe the agriculture. So जो core sectors हैं. नहीं, बट हेल्थ केयर में भी आजकल कह रहे हैं कि रोबोट्स आ गए हैं जो सर्जरी कर रहे हैं, तो वो भी AI पावर्ड होंगे. उसमें बस डॉक्टर के इनपुट्स की ज़रूरत है, बाकी काम वो कर लेगा. So, and then there is telemedicine. So, a lot of the telemedicines is like FAQs. कि अच्छा सर दुख रहा है, ये हो रहा है, तो ये ले लो, ये diagnosis है. So, again there you see AI coming in. So, I'm just saying, will you see new sectors creating, because somewhere new jobs have to be created, right? Yeah. Otherwise, you'll have to overall shrink the whole global population. That's not possible. No, I think क्या होगा कि we would live in abundance. मतलब जो अभी लोग पुअर हैं, right? क्यों हैं? मुझे लगता है उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, क्योंकि उनको सिर्फ एक अपनी रीजनल लैंग्वेज आती थी. शायद कंटेंट जो था उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए या स्किल होने के लिए उनको नहीं मिल पाया. वो पढ़ नहीं पाए इंग्लिश, वो हिंदी पढ़ नहीं पाए. तो जब वो अपनी भाषा में चीज़ें सीखेंगे, अपने हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, स्किल्स लाएंगे. तो आपको लगता है कि प्रोग्रामिंग और ये सारी स्किलिंग्स भी अपनी लोकल लैंग्वेज में हो जाएगा एक टाइम में? बिल्कुल. वी विल अनाउंस दैट अ चैटबॉट टू क्रिएट अ चैटबॉट. ओह, या सून. वाह. या सो मैं तो धीरे-धीरे सुर्रियां खोल रहे हैं आप. आई एम सेइंग इट्स व्हाट इज गोइंग टू बी ऑसम. हाँ, डरने शरने की कोई ज़रूरत नहीं है. अच्छा. तो वी जस्ट हैव टू सी कि हम अपनी लाइफ जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, आई थिंक दे शुड जस्ट थिंक अबाउट हाउ टू मेक एवरीवन्स लाइफ ईजियर एंड हैप्पियर.
है ना, तो उसके अराउंड ही हम सारे काम करें. आई थिंक वी शुड फॉरगेट अबाउट कि एआई में कुछ जॉब करें. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वी ऑल हियर, आई डोंट थिंक दैट्स अ रियल जॉब. आई डोंट थिंक सो. क्या प्रॉम्प्ट लिखोगे अगर आप हेल्थ केयर में हो? यू हैव टू राइट. आपको हेल्थ केयर पता ही नहीं है तो क्या राइट? सो ओनली अ डॉक्टर वुड बी एबल टू राइट अ राइट प्रॉम्प्ट. So we have to be expert in our own field. Few have to be techies. So that's only few. Rest population which is worried about the jobs and all that, they should make their domain knowledge better. चाहे वो हेल्थ केयर में. अभी देखो जो असिस्टेंट है, अभी भी तो जो बड़ा डॉक्टर है उससे पहले छोटा डॉक्टर देखता है. करेक्ट. वो लिखता है. तो फिर उसके बाद हाँ ठीक है. तो छोटे डॉक्टर का काम शायद वो कर लेगा. तो एंड इट शुड डू राइट. द डॉक्टर्स आर स्टिल, आई थिंक we have scarcity of doctors. Correct. So why not AI to help? We have scarcity of teachers also. So there's scarcity everywhere. Yeah, that's true. But there is also a gap. See, I'm just saying when you watch society, and I'm sure you do very closely, do you feel that there is, today we have created a huge workforce which is qualified one way, whereas the demand is somewhere else? Do you feel this demand-supply gap in terms of knowledge, quotient and capability? I think... आपके एज एन एंटरप्रेन्योर आपको लगता है कभी? आई थिंक वी डोंट नो बिकॉज इवन द क्रिएटर्स ऑफ द टेक्नोलॉजी आर नॉट अवेयर कि उसका क्या क्या यूज़ हो सकता है. राइट. जैसे आप हमें बोल रहे थे कि आप ही क्यों नहीं वो गीता वाला कर लेते. तो ऐसे 1000 चीज़ें हो रहे हैं. हमें नहीं पता कि कौन सी चलेगी. लेट समवन हैज टू टेक रिस्क और बिलीव इन दैट. राइट. हमने तो एक अपना प्लेटफॉर्म बना रहे हैं. समवन शुड से कि रिस्क एक पार्ट है, दूसरा शुड बिलीव इन दैट एंड मेक एवरी एफर्ट टू मेक श्योर दैट पार्ट इज सक्सेसफुल. अब क्या चलने वाला है, नो वन इज अवेयर. कहाँ पे डिमांड है, कहाँ सप्लाई है. सो ऑफ कोर्स मोटा मोटा तो हमें सब पता है, बट वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग, आई थिंक वी आर स्टिल इन दैट disruption phase. The normalization would happen in next 12 to 18 months. I think we have to keep ourselves updated with what's happening around. And again, we should not have too much of FOMO. AI नहीं अडॉप्ट किया तो पीछे रह जाएंगे. कुछ नहीं होने वाला. So just concentrate on the existing domain. Make yourself better in whatever you're doing. I think मुझे नहीं लगता कि कुछ जो अभी आपको 6 महीने लगेंगे बाद में शायद आपको 2 दिन लगेंगे.